पाती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती राम बटैया जी के जीवना मोह न बटारो मैं जन तेरा मोह बटारो जी मैं जन तेरा मेरी फरो विपत जन करो डुबाई चरण न छाडो शरीर कल जाई कह रब दात पर तेरी तांबा बेग मुलाजम करना बुलावा अमन बटारो जी मैं जन तेरा
खुशियां जे सतगुर मेरा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर मदद करे परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां कर्म वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूर नेड़े पापो अपने दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां नूं सतगुरु पातशाह जी दे चरणों विच लगा के सबने करन दी खेचला यानी कृपालता कर वैरू दे नाम विच कीन वैरू दे नाम विच सब कुछ है दीन भी है दुनिया भी है इस लोक दे सुख भी हैं पर लोक दे सुख भी हैं
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ जितने भी बैठे, आया कि कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई जिमींदार है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ। ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਖ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਹਿਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਨੋ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਯੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭ ਰੋਗ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਹਿਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, 36 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਵਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
श्री सुखमनी साहब की बाणी साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक ऐसी बाणी उच्चारण करके रख दी जिस विच 4 वेद 18 प्राण 27 सिमरतियां 6 शस्त्र दुनिया भर के वेदां शस्त्रां का निचोड़ है जिस दे 724 श्लोक 24 अष्टपदियां और 24,000 अखर हैं। ਅਸੀਂ जो 24 घंटे श्वास खिंचते हैं साह लेंदे हैं इन्हां श्वासां की गिनती लगभग 24,000 श्वासां दे नेड़े है। 24 घंटे दे विच जेकर एक सुखमनी साह दा पाठ कर लिया जाए जो बड़े आराम नाल पौने घंटे घंटे सवा घंटे विच हो जाता है। एक पाठ सुखमनी साह दा करन दे नाल ये जो साडा 24 घंटे का 24,000 श्वास है ना ये सफला हो जाता, ये लेखे च आ जाता। जेड़ा बंदा 24 घंटे दे विच रोज दे कह लो 2 सुखमनी साह दे पाठ करता है ओनू 1 महीने तो बाद एक गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ अखंड पाठ साहब दे पाठ दे भोग दे बराबर फल यानी लाभ प्राप्त होया करता। इस बाणी दे शुरू विच ही सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सिमरन दे फल यानी फायदे दसते हुए यूं गुरबाणी उच्चारण करते हैं। जिवें असीं कोई काम करते हैं काम करन तो पहला असीं सोचते हैं कि सानू इस काम दे विच की फायदा होएगा, की प्रॉफिट होएगा, की लाभ होएगा, की बेनीफिट होएगा। इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज इस बाणी दे शुरू विच ही सिमरन दे फल यानी फायदे दसते हुए यूं गुरबाणी उच्चारण करते हैं। जे तू वैरू दा नाम जपेगा सारे सुखी मंगते हैं ना, पर गुरु साहब इस बाणी दे शुरू विच सिमरन दे फल यानी फायदे दसते हुए यूं गुरबाणी उच्चारण करते हैं। सिमरत 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 पावो सिमरत सिमरत प्यारे
दा सिमरन करिया सारे ही सुख प्राप्त होया करदे ने। सिमरो सिमर सिमर सो पावो, वैरू दा सिमरन करिया शरीर दे विचों कला कलेशां दा नाश होया करदा। कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जस संबर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण सिमर सुध्याखर कीने राम नाम, एक आखर किनका एक जिस जी बसावै, तांकी महिमा गणी न आवे। कांकी एका दस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मणि, मणि कहंदे ने बड़ी अमोलक वस्तु है। सपेरे लोग जानते ने किसे किसे सप दे सिर च मिलती है। इत्थे मणि तो भाव सुखां दा खजाना, सुखां दी मणि की वहरू अंतरजामी दा नाम। सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। रोज पढ़ते घर तां तेरे सब कुछ है, सब कुछ जमीन तो पैदा हुंदा, इहदे विच कोई शक नहीं। पर जे जमीन दे विच एक वत ना होवे, एक नमी ना होवे, एक वत्तर ना होवे, सुक्की जमीन जिन्ना मर्जी वाह दो, जिन्ना मर्जी बीज पा दो, जिन्ना मर्जी रेह खाद पा दो, कदे सुक्की जमीन दे विच बीज उगया नहीं करदा। साध संगी जी, जिवें वत तो बिना जमीन दे विचों कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, जिवें माता तो बिना बच्चे दा जन्म नहीं हुंदा, इवें शरधा तो बिना गुरु नानक साहब दे घरों कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। शरधा नूं भगती दी मान दस्सिया। गुरु की संगत जिथे शरधा आ गई, घर तां तेरे सब कुछ है। जे शरधा ही नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। घर तां तेरे सब कुछ है, जिस देश वो पावै। शरधा तो हीना, शरधा तो हीना पुरुष पहली गल उन्हें गुरु घर आना ही नहीं। जे आ भी गया उन्हें बहना ही नहीं, जे बह भी गया उन्हें सुनना ही नहीं, जे उन्हें सुन भी लिया उन्हें मनना ही नहीं। तदे गुरु सब कहते ने, जिनके चित कठोर है से बह न सतगुरु पास। जिवें आप जी ने बहुत बड़े बड़े दरिया वेखे होंगे, दरियावां दे विच बहुत बड़े बड़े पत्थर पै हुंदे ने। उन्हां पत्थरां दे उत्ते साध संगत जी पानी दा कोई असर नहीं हुंदा। पत्थर पानी दे विच हज़ारां साल रह के ना गलदा ना ढलदा, ना पत्थर ते कोई पानी दा असर होया करदा। इवें पत्थर चित मनमुख बंदे दे मन ते बाणी दा कोई असर नहीं होया करदा। जिवें चिचड़ मझ दे थणा दे कोल रहिंदा, सास मझ दे थणा च दुध भी है, मझ दे थणा च खून भी है। पर साध संगत जी, चिचड़ मझ दे थणा दे कोल रहिंदा होया ओहदे कर्मां दे विच दुध नसीब नहीं है, ਉਹ खून पींदा। इवें गुरु साहब कहते ने, जेड़ा शरधा तो हीना पुरुष है, जे गुरु घर आ भी जाए उन्हें फायदा तो की ठोना, सगों उल्टी गुरु घर दी निंदा करके चला जाता। जिनके चित कठोर है से बहन न सतगुरु पास, ओथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास सच दी गल। मन दे पापी पुरुष नूं कौन आखे मक्खी नूं तू चंदन ते नाम है। कबीर जी ने प्रमाण दिता, कहंदे ने जिवें मक्खी नूं चंदन ते बहना चंगा नहीं लगदा, इवें मन ते पापी पुरुष नूं रब दी गल चंगी नहीं लगदी। साध संगत जी, ओने नाम तां की जपना है, ਉਹ ਤਾਂ परमेश्वर दा ना सुन के राजी नहीं। कबीर पापी भगत ना भावी, हर पूजा ना सुहाए। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ परमेश्वर दा ना ही सुनना चंगा नहीं लगदा। ਉਹਨੇ ना ਤਾਂ की जपना। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈ ਬਿਗੰਦ ਤਨ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ बैठिया कर दी। तां ते लोड़ है शरधा दी। गुरबाणी दे विच प्रेम भाव मनसा आसा शरधा इहो जे शब्द आउंदे ने, पर यह बख्शिश किहदे ते हुंदी है? गुरु की संगत
महाराज कहते जिहदे ते ओ बख्श कर देवे। साध संगत जी मनसा धार जो घर ते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे। जिड्डी वड्डी शरधा ओडा वड्डा फल गया करता। साध संगत जी शरधा दे विच बड़ियां बड़ियां बरकतां, बड़ियां बड़ियां शक्तियां हन। पहुंचो खंडूर साहब दी पावन पवित्र धरती ते। किसे मौके गुरु अंगद देव महाराज दे रूहानी दरबार लगे हुए हैं। देवतियां दी न्याई सिख सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज दे चरणों च बैठे ने। सासों भाई बाला जी चौर कर ने। समा बीतदा तुरया जांदा। चौर करदे करदे भाई बाला जी ने गुरु अंगद देव महाराज दे चरणों च बेनती की, महाराज ये चौर जो मैं आप जी नूं कर रहा, ये चौर तां गुरु नानक साहब दे समय भी मेरे हत्थ विच हुंदा सी। महाराज किरपा करके ये दसो, मेरे मन का एक शंका है, आप जी ने गुरु नानक जी नूं की करके जानिया, की करके जाता, की जान के सेवा की। महाराज सेवा मैं भी की, सेवा तुसी भी की। महाराज किरपा करके ये दसना करो, माफ करना, आप जी ने गुरु नानक जी नूं की करके जानिया, की करके जाता। आप जी की भावना, आप जी की श्रद्धा गुरु नानक के प्रति किहो जी सी जो आप जी नूं गुरता गुरगद्दी प्राप्त होगी। और चौर अज भी मेरे हाथ विच उस तरह तुरया आउंदा है जिस तरह गुरु नानक जी दे वेले मेरे हाथ विच होया करदा सी। साध संगत जी एक पासे बाला गुरु अंगद देव महाराज जी दा गुर भाई है, क्योंकि गुरु अंगद जी दा पहला नाम बाबा लैणा सी। बाबा लैणा जी और भाई बाला जी गुरु नानक पातशाह जी दे सिख सन। जिथे भाई बाला गुरु अंगद देव महाराज दा गुर भाई है, उथे गुरु अंगद देव महाराज हुण भाई बाला जी दे गुरु भी हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी गुरता गुरगद्दी दी बख्शिश गुरु अंगद देव महाराज ते कर गए हैं। जदों भाई बाले ने यह गल पूछी, महाराज आप जी ने गुरु नानक जी नूं की करके जाने, की करके जाता, तुहाडी शरधा गुरु नानक दे प्रति किहो जी सी, मारे की जान के सेवा की जो आप जी नूं गुरता गुरगद्दी प्राप्त होगी। और ये चौर मेरे हाथ विच उस तरह तुरया आउंदा है जिस तरह गुरु नानक दे समय मेरे हाथ विच ये चौर होया करदा सी। उस मौके गुरु अंगद जी लगे कि भाई बाला जी पहला तुसी दसना करो, तुसी गुरु नानक जी नूं की करके जाने, की करके जाता, तुहाडी भावना, तुहाडी शरधा गुरु नानक दे प्रति किहो जी सी। भाई बाला जी ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं तो गुरु नानक जी एक संत करके जाता, एक महापुरुष करके जाने, एक संत जान के सेवा की, एक महापुरुष करके जान के सेवा की। मेरी भावना गुरु नानक दे प्रति एक संत वाली सी। गुरु अंगद देव महाराज लगे कि देखो भाई बाला जी तुहाडा सत्कार किसी संत महात्मा दे नालों घट है, तुहाडा सत्कार किसी महापुरुष दे नालों घट है। भाई बाला जी लगे कि महाराज मेरे बराबर किसी संत महात्मा का सत्कार की हो सकता है। मैं जेड़े शहरों के बाजारों विचों, जेड़े पिंडां दीयां गलियां विचों गुजरदा, लोग मेरे वाल उंगलियां कर करके इशारा करते हैं, धन है ये महापुरुष जिन्हें सारा जीवन गुरु नानक जी के चरणों में रह के गुरु नानक की सेवा की। पातशाह मेरे बराबर किसी संत महात्मा का सत्कार की हो सकता है। उस मौके गुरु अंगद देव महाराज लगे कहन देखो भाई बाला जी गल साफ यार, तुझे गुरु नानक जी नूं संत करके जाता, पर माफ करना महापुरुष करके जाने, तुहाडी भावना गुरु नानक दे प्रति संत वाली सी, संत जान के सेवा की, तुसी संत बन गए कि नहीं बन गए। मारे मैं मनदा कि मैं गुरु नानक जी नूं संत करके जाता, संत जान के सेवा की, मैं संत बन गया, पर तुसी किरपा करके दसो तुसी गुरु नानक जी नूं की करके जानी, की करके जाता जो आप जी नूं गुरता गुरगद्दी प्राप्त होगी। कहन दी देरी सी, गुरु अंगद देव महाराज दा वैराग छुट गया, ताहां निकल गई, आख्या बालिया असी ते गुरु नानक जी नूं रब करके जाने। बालिया साडी भावना तां गुरु नानक दे
प्रति रब वाली सी, परमेश्वर वाली सी। परमेश्वर जान के सेवा की, कहन दी देरी सी। भाई बाले दियां धाहां निकल गईयां। पातशाह भावना का ही फर्क सी, पातशाह शरता का ही फर्क सी। सेवा तुसी भी कीती, सेवा मैं भी कीती। महाराज तुहाडी भावना गुरु नानक दे पति प्रति परमेश्वर वाली सी। आप परमेश्वर बन गए, मेरी भावना संत वाली सी, मैं संत बन के रह गया। भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने अपनी वारां दे विच, कहंदे ने कि गुरु दा किसे नाल वैर नहीं है। गुरु करोड़ां शक्तियां दा मालक हुंदे होए निर्वैर है। गुरु दा किसे नाल वैर नहीं है। जिवें दी कोई भावना गुरु साहब ते रखदा, सतगुरु पातशाह उवें दी पूरी करदे ने। साध संगत जी अगे प्रमाण दिंदे ने भाई साहब, जिवें शीशे दा किसे नाल वैर नहीं, जे माफ करना जेकर आपां शीशे दे सामने खड़े होके शीशे च अपना मुंह वेखीए ना, जिवें दा किसे दा मुंह है शीशा वैसा ही दसदा है। जिवें धरती दा किसे नाल वैर नहीं, जिवें दा कोई बीज बीजदा है उवें दा अंत नूं कटदा वढदा। इस तरह गुरु दा भी किसे नाल वैर नहीं, जिवें दी किसे दी भावना है सतगुरु पातशाह वैसी पूरी करदे हन। भाई बाले दी भावना संत वाली सी। भाई बाला जी संत बन गए, पर बाबा लैणा जी भाव गुरु अंगद दे मर दी भावना शरदा गुरु नानक दे प्रति परमेश्वर वाली सी। वो परमेश्वर बन गए। तदे भाई सब कहंदे ने जिड्डी वड्डी भावना ओडा वड्डा फल लग्या करदा। निर्वैर निराला जी, निर्वैर निराला जी, निर्वैर शीशे का कहते जिवें शीशे के सामने खड़े होके आप किसी का अपना मुंह वेखीए, जिवें दा किसी का मुंह है उन्होंने शीशा वैसा ही दसदा है। इस तरह जिवें दी किसी की भावना गुरु घर से सतगुरु पातशाह वैसे ही पूरी करया करते हैं। खालसा जी दुआपर युग दा समा कृष्ण भगवान जिन्होंने 16 कला विष्णु का अवतार मने आप इस युग के राजे भी सन, इस युग के अवतार भी सन। एक गल समझाउण लगे कई कई दलीलां देनियां पैंदियां ने, प्रमाण देने पैंदे ने, तां जाके गुरबाणी की कुछ समझ पैंदी है। मां करना जिड्डी वड्डी शरधा ओडा वड्डा फल लग्या करदा। खालसा जी
बच्चे स्कूलों कॉलेज यूनीवर्सिटियां पढ़ते हैं, जिन्नी लेबर करते हैं उन्ना फल भी मिलता साध संगत जी। इस तरह परमात्मा वाले पासे भी जिन्नी कोई श्रद्धा रख के आउंदा गुरु घर उन्ना ही फल मिलिया करता है। परमेश्वर कहता तैनू सुख चाहिए ने, तू अपने आप नू सवार लै। जदों तू अपने आप नू सवार लवेगा तैनू मैं मिल पवांगा। जदों तैनू मैं मिल पिया फिर तो तेनू कोई कमी रह नहीं सकती। जो मेरा और सब कुछ ही तेरा है। पिता की प्रॉपर्टी का मालिक लाइक पुत्र होया करता है। हम तुम्हारे मैं मिले मैं तेरी हर होए, ये तू मेरा होए रहे, मैं तेरा होए। दुआपर युग का समा कृष्ण भगवान जिन्होंने 16 कला विष्णु का अवतार मने आप इस युग के राजे भी सन, इस युग के अवतार भी सन। राज में राज जोग में जोगी पाया एक समय कहते हैं कि कृष्ण भगवान आप जी के दर्शन करने वास्ते अर्जुन जाता है। आज अर्जुन की देखता है कृष्ण भगवान चौंकड़ा लग्या होया है, समाधि अवस्था च बैठे ने। सियाणे पुरुष इहो जिहे समय महापुरुषों के नेड़े नहीं जाया करते। अर्जुन ने गुरु प्यारे दूरों नमस्कार की, दोवें हाथ जोड़ के एक पासे खड़ा हो जाता है। समा बीतदा तुरिया जाता है। एक घड़ी दो घड़ियां तो पैर का समा गुजर गया। पैर 3 घंटे का मनिया। जदों भगवान दी माफ करना 3 घंटे का समा गुजर गया, अर्जुन के मन में शंका पैदा हो गया। असीं भगवान दे सेवक हां, भगवान दे भगत हां। कोई भगवान दे चरणों का ध्यान करता है, कोई भगवान दे स्वरूप का ध्यान करता है। दुनिया भगवान नूं 16 कला विष्णु का अवतार मनदी है। भला जो खुद भगवान है, भगवान नूं किसी का ध्यान करने की लोड़ है? भगवान की ना ध्यान करी बैठे ने। गुरु प्यारे तू एक पैर का समा गुजर गया। भगवान दे नेत्र खुले ते नजर अर्जुन ते पई। वेख के लगे कि आ बेटा अर्जुन कैसे आना होया। अर्जुन ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, पातशाह आया तो तुहाडे दर्शन करने वास्ते। तो इत्थे आके मेरे मन में एक शंका पैदा हो गया। असीं आप जी दे भगत हां। कोई हजूर दे चरणों का ध्यान करता है, कोई हजूर दे स्वरूप का ध्यान करता है। महाराज दुनिया आप जी 16 कला विष्णु का अवतार मानती है। महाराज भला जो खुद भगवान है, भगवान नूं किसी का ध्यान करने की लोड़ है? भगवान की ध्यान करी बैठे सन। जदों अर्जुन ने यह गल पूछी, कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले लगे कहन, बेटा अर्जुन मैं उन्हां दा ध्यान करदा जेड़े मेरा ध्यान करते ने। अर्जुन जेड़े मैनू एक बारी याद करते ने, मैं उन्हां नूं बार बार याद करदा हां। जिड्डी वड्डी भावना ओडा वड्डा फल लग्या करदा। परमेश्वर कहंदा एक तू मेरा हो जा। जे तू मेरा हो जाए सब जग तेरा होए जी, सब जग तेरा होए जी, सब जग तेरा, सब जग तेरा होए जी, सब जग तेरा होए जी, सब तेरा होए जी, सब तेरा होए जी। ये तू मेरा होए रहे, ये तू मेरा होए रहे, ये तू मेरा होए रहे, ये तू
परे कुछ है ही नहीं, परमेश्वर तो परे कुछ नहीं। और परमेश्वर कहता जे तू मेरा हो जाए, जो मेरा ये सब कुछ तेरा है। गुरु प्यारे, लोड़ है श्रद्धा दी, लोड़ है भावना दी। मन तो भाव जो करते आवे, सारे जुड़े हैं, पर किन्ने क बंदे सन जिहड़े गुरु नानक साहब दे नाल जुड़े सन। कोई दुध मंगदा, कोई पुत मंगदा, कोई धन मंगदा, कोई बिजनेस मंगदा, कोई कारोबार मंगदा। जो मंगा सो लेवै प्रभ अपने भगता, देवै जो मंगदे मिलदा। पर मेरे ख्याल है कि गुरु नानक साहब का दर्शन तो असीं कदे भी नहीं मंगिया। जो मंगिया नहीं मिलेगा किवें? जुड़े हाँ, गुरु नाल नहीं जुड़े। किन्ने क बंदे सन, यही गल तो गुरु साहब देखते सन। समा आग्ञा नहीं दिंदा, पर आओ गुरु प्यारिओ, यही गल तो देखते। छाती मार के देख लो, आपां किन्ने क गुरु साहब नाल जुड़े हैं। माफ करना, अंतम समा जो गुरु नानक पातशाह जी का आया ते साध संगत जी संगत नूं लगे कि लखां दा कट सी। करतारपुर साहब की पावन पवित्र धरती ते गुरु जी लगे कि गुरु प्यारिओ, असीं निरंकार दे देश नूं चले। इंज करो, आपो अपने घरां नूं चले जाओ। हुण जिहड़े मेरे वर्गे गुरु नानक साहब दे शरीर तक ही सीमत सन कि पातशाह जी तां हुण निरंकार दे देश नूं चले ने। आपां हुण की करना, चलो घरां नूं चलीए। संगत दे विच उठ के आपो अपने घरां नूं चाले पाते चले गए। उन्हां समय जंगलात बहुते हुंदे। साध संगत जी माफ करना, गुरु बाबा जी ने जंगल वाल चाले पाते, तुरे जाते ने। अगे वध के की देखते ने, पिछे अजे संगत बड़ी तुरी आउंदी। गुरु बाबे ने नजर मारी, लोहे वर्गियां दातां दे ढेर लगा के रख दिते। लगे कहण गुरु की संगत जिद ना करो, जिद ना करो। असीं जे तुहानूं कहा कि निरंकार दे देश नूं चले आ, इंज करो, ये लोहे वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं चले जा। बेअंत संगत सी जिहड़ी, वो लोहे वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं वापस मुड़ गई। गुरु जी होर अगे वधे, पिछे मुड़ के की वेखदे ने? अजे भी संगत तुरी आउंदी। गुरु बाबे ने नजर मारी, चांदी वर्गियां दातां दे ढेर लगा के रख दिते। साध संगत जी आख्या गुरु की संगत जिद ना करो, तुहानूं जी क्या निरंकार दे देश नूं चले। अज चांदी वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं वापस चले जा। बेअंत संगत सी जिहड़ी, वो चांदी वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं वापस मुड़ गई। गुरु बाबा जी होर अगे वधे। माफ करना, पिछे मुड़ के की देखते ने? अजे भी संगत तुरी आउंदी। नजर मारी, सोने वर्गियां दातां दे ढेर लगा के रख दिते। साध संगत जी हुक्म होया, गुरु की संगत जिद ना करो। इंज करो, ए सोने वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं चले जा। हुण थोड़ी जी संगत रह गई। गुरु बाबा जी फिर अगे वधे, पिछे मुड़ के की देखते ने कि अजे भी कुछ संगत तुरी आउंदी। नजर मारी, हीरियां ते लालां वर्गियां दातां दे ढेर लगा के रख दिते। गुरु बाबे ने हुक्म किया, गुरु दी ये संगत जिद ना करो। तुहानूं जो किया निरंकार दे देश नूं चले आ, इंज करो, आ हीरियां ते लालां वर्गियां दातां चक के आपो अपने घरां नूं वापस मुड़ जाओ। और जिन्नी भी संगत सी ना, हीरियां लालां वर्गियां दातां चक के आपो अपने घर नूं वापस मुड़ गई। पर बाबा जी अगे वधे ने, पिछे मुड़ के की वेखिया? इको ही निकलिया जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया सी। साध संगत जी कौन है? कोई किसी चीज नाल जुड़िया सी, कोई किसी नाल जुड़िया सी। कोई सोने तक सीमत सी, कोई चांदी तक सीमत सी, कोई हीरियां ते लालां तक वर्गियां दातां तक ही सीमत सी। बाबा जी ने पिछे मुड़ के वेखिया, की दे दिन गुरु नानक पातशाह जी, पिछे होर ते कोई नहीं, एक बाबा लैणा जी गल च पल्लू पा के खलोते ने, दोवें हथ जोड़ के। गुरदेव लगे कहणों लैणे आ, किते लोहे वर्गियां दातां, किते चांदी, किते सोना, किते हीरे,
ते किते लालां वर्गियां दातां दे ढेर लगे हुए लेने आ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਥਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਦੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ VCR ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦੋਸ਼ਾ ਜੀਵ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲਦੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟਰਸਟ ਇਨ ਗਾਡ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ, ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਪਰ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ, ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਮੁਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਗੰਦ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੰਗ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਰੰਗ ਕੋਇਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨਮੁਖ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਾਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਕੋਇਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਚੁੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੰਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੁਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ।
ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਮਤ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੁ ਨਿਵਾਸ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਸਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਵੋ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਵਾਵੋ, ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 500 ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਟੋਟਲ 10,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।